Good morning, everyone. My name is Shivani Tyagi, your current affair teacher, and this is a beautiful morning to start with today's current affair. With this, I remember Gautam Buddha's quote, and he says, "Do not believe anything just because you have heard it." Now, Buddha said this more than 2,500 years ago, and yet this feels, that it is written for today's world. So today's information, it is like everywhere: social media, headlines, reels, opinions, forwarded messages, right? But UPSC does not reward noise. UPSC rewards clarity, right? And current affairs is not about knowing what happened. It is about understanding why it happened, who is affected, what are the consequences, what state should do. So this is exactly what Buddha meant. Don't accept information blindly. Examine it now. Now there is one task for you in the comment section. You'll be writing one thing, one sentence only, one news from today that made you pause and think. It can be anything, something that surprised you, something that confused you, or something like, made you pause, or something that gave you hope. Now, why we are doing this? You are owning your learning. You're telling your brain that, yes, I did something. You are acknowledging all your small actions. You are making efforts. In life, consistency is built not by motivation, but by acknowledging small actions. So write it, claim it, not for me, but for yourself. So saying this to yourself that I'm not, showing up for my future, I'm owning this, and be proud of that. So with this beautiful thought, let's start and begin with our today's current affair, which are very important, and make sure that you are writing all the keywords. So first news says, why Aravalli Hills in spotlight and what environmentalist demands? Very important. Good morning, everyone. Good morning. Make sure that you are sitting. Ashutosh, it's you people that motivates me each and every morning because you show up each and every day on my life and listen to these current affairs. So it's you students who motivates me every single morning. Thank you for asking this question. Now with this, let's move to our first current affair and make sure that you, I'm again saying it, you are sitting with pen and paper. Now, imagine karo that there is a long or lines of hills that has like stood for millions of years, protecting the land around it like a quiet guardian. So this is Aravalli Ranges, one of the oldest mountain ranges in the world. Stretch कहाँ से हो रही है? Rajasthan into Haryana and towards Delhi. So कुछ time से people like respected these hills. So they helped in the desert from spreading further. ठीक है, stopped wind and soil erosions, and helped rainwater soak into the ground to refill the groundwater, and supported unique mix of trees and animals adapted to dry lands. ठीक है, जितने ज़्यादा adaptation यहाँ पे देख सकते हो आप animals की और basically नए mammals की, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. But things begin to change as cities expanded, as we started moving towards development. ठीक है, urbanization की हम तरफ move करने लग गए, तो कहीं ना कहीं environment पे सवाल उठने लग गए. And this is the question that has been raised recently, especially around Gurgaon, Faridabad और Delhi के areas में. So many people started using the hills for mining, construction के लिए use करने लग गए, real estate के लिए use करने लग गए. So the result was land being, flattened, trees were cut, soils was washed away, and water sources are like drying up. तो ये सारे consequences हमें development की जो हम तरफ move कर रहे हैं हमें देखने को मिल रहा है. Now the hills that once protected the lands were being worn down. So then environmental scientists, activists और हमारे वाइल्ड लाइफ लवर्स जो है दे बिगिन टू रेज द अलार्म. दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस. उन्होंने पूछा कि अगर हम ये डिस्ट्रॉय करते ही रहेंगे राइवलीज एंड इट विल लाइक वर्सन एयर क्वालिटीज ऑल्सो. ठीक है, ग्राउंड वाटर रिड्यूस हो जाएगा और डस्ट स्टॉर्म जो है वो और ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, हार्शनेस ऑफ डेजर्ट दैट कुड बी सीन मोर एंड मोर. ठीक है, तो ये सारी, ओके थैंक यू गार्गी, ये सारी चीजें हमें देखने को बहुत ज्यादा मिलेगी. सो now the Aravalli ranges have come into the spotlight, meaning people are talking about again because it's important for the environment and public health, right? Now, environmentalists demand क्या कर रहे हैं? Make sure that you are writing these pointers. पहला तो वो demand कर रहे हैं कि strict protection for the Aravalli hills, हमें protection दो, ठीक है? कि they want that the hills to be declared as forest or eco-sensitive area so that cutting trees, mining और construction जो है वो ban हो सके. दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली है कि illegal mining को बंद करो, stop illegal mining. So mining has been one of the biggest threats. Environmentalists say that mining must be stopped because it destroys topsoils and make the land fragile. ठीक है, इसकी वजह से mining को आपको रोकना पड़ेगा. तीसरा उन्होंने क्या बोला, afforestation, planting trees. They want large scale replantation and restorations for all the areas to bring back lost greenery.
जितने भी ट्रीज कट डाउन हुए हैं, ठीक है, वहां पर पेड़ लगाया जाए, तो जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो। दिस इज द थर्ड थिंग दे हैव आस्क्ड। चौथी चीज उन्होंने क्या मांगी है? चौथी चीज उन्होंने मांगी है प्रोटेक्शन फॉर वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट्स। एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि दीज हिल्स आर लाइक होम टू मेनी एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स के लिए। ओके, सो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अराइवलीज आर नॉट जस्ट हिल्स और लैंड टू बिल्ड ऑन, ठीक है, दे आर नेचर शील्ड फॉर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। बहुत क्रूशियल है वाटर के लिए, सॉइल के लिए, एयर के लिए, क्लाइमेट के लिए। और अगर हमने उन्हें ही खो दिया तो हम बेसिकली नेचुरल एडवांटेज जो है, जो हमारे पास पहले इतना ज्यादा था, राइट, वी आर गोइंग टू लॉस दैट एज वेल। ठीक है, अब एग्जैक्टली एक एक पॉइंट करके समझेंगे कि ये कहानी है क्या, ठीक है, और फिर इसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो द अरावली रेंजेस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। बहुत ज्यादा पुराना है, हिमालय से भी ज्यादा पुराना है, विच इज वाई द हिल्स आर लाइक लो, दे आर ब्रोकन और दे आर लाइक हेवीली इरोडेड। ठीक है, अब ये लोकेटेड कहाँ पे है? ये लोकेटेड है इन द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, अक्रॉस नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, अब ये पास कहाँ से होता है? इट पासिस बेसिकली थ्रू राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, एंडिंग रीजन दिल्ली। सो व्हाई आर द राइलवे सो इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट? ठीक है, पहला रीजन ये है कि बैरियर्स अगेंस्ट डेजर्ट एक्सपेंशन इज देयर। ठीक है, अराइवली हिल्स एक्ट लाइक अ नेचुरल वॉल दैट स्टॉप्स फॉर डेजर्ट हिल्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या प्रिवेंट होता है? यहाँ पे प्रिवेंट होता है दैट सैंड जो ईस्टवर्ड से आ रही है वो रोकने में हेल्प करती है। ठीक है, बिना उसके द थार डेजर्ट कुड एक्सपेंड टुवर्ड्स दिल्ली और हरियाणा आल्सो। इसीलिए यहाँ पे कंसेप्ट हमें देखने को मिलेगा इकोसिस्टम सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द माउंटेन्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई एग्जाम्पल आता है लिखने के लिए दैट how mountains are basically useful while providing the ecosystem services, then you can write this example of Aravallis. ठीक है, अगर थार डेजर्ट बेसिकली हमारा एक्सपेंड हो सकता है दिल्ली से हरियाणा तक अगर हमारे पास अराइवलीज ना हो तो। दूसरा पॉइंट हमारे पास कंट्रोल ऑफ विंड एंड सॉइल इरोजन, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, दीज हिल्स दे स्लो स्ट्रॉन्ग विंड्स, दे बेसिकली होल्ड सॉइल टुगेदर और प्रिवेंट करता है हमारा फर्टाइल टॉप सॉइल का, राइट, फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे। सो दिस हेल्प्स एग्रीकल्चर एंड दिस लैंड स्टेबिलिटी आल्सो। अगर यहाँ पे यूपीएससी आपसे सवाल पूछता है लैंड डिग्रेडेशन का या फिर डिसर्टिफिकेशन का, देन यू कैन राइट दिस एग्जांपल। ठीक है, अब उसके बाद में हमारे पास आता है दैट इज ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ठीक है, अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात करें तो अराइवलीज रॉक्स अलाउज रेन वाटर टू सीप अंडरग्राउंड। सो इसका मतलब ये है कि वो रिचार्ज करती है हमारे एक्वाफायर्स, सपोर्ट करती है हमारे वेल और हेडपंप्स को, इंप्रूव करती है हमारी वाटर सिक्योरिटी। ठीक है, जितने भी ड्राई एरियाज है वहां पर अगर आपसे यूपीएससी सवाल पूछता है हाइड्रोलॉजी और वाटर कंजर्वेशन का, तो आप यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैं आपको हर एक पॉइंटर का रीजन बता रही हूँ कि आप कहाँ कहाँ किस किस चीज में यूज कर सकते हैं, ज्योग्राफी में या फिर आप यूज कर सकते हैं इसको और किसी भी सब्जेक्ट में। सो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग ऑल द पॉइंटर्स एंड ऑल द कीवर्ड्स डाउन। ओके,
अब इसके बाद हमें ये तो समझ में आ गया। उसके बाद चौथी चीज आती है बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट कैसे देती है ये हिल्स हमें। सो दीज अराइवलीज आर लाइक होम टू ड्रॉट एंड रेजिस्टेंट प्लांट्स, जैसे कि बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स होगी, और जितने भी स्मॉल मैमल्स हैं, दे अडेप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट्स। ठीक है, अगर यूपीएससी आपसे सवाल पूछता है इकोलॉजी से रिलेटेड, अडेप्टेशन से रिलेटेड या फिर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब सवाल आता है कि अरावलीज जो है हमारे डेंजर में है क्यों। ठीक है, तो दिस लार्ज पार्ट ऑफ द अरावली रीजन्स हैव बीन लाइक सिवियरली डैमेज्ड। ठीक है, मेजर कॉज क्या है इसका, अनदर चीज दैट यू हैव टू राइट डाउन। सबसे पहले मेजर कॉज है इसका माइनिंग। ठीक है, तो हमारी जो लीगल और इलीगल माइनिंग है फॉर स्टोन एंड मिनरल्स, इट इज हैपनिंग देयर। सो दिस ब्रेक्स हील्स एंड डिस्ट्रॉयज नेचुरल स्ट्रक्चर। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस दूसरा रीजन, दीज फार्म हाउस, रोड्स, रिजोर्ट्स, स्पेशली नियर दिल्ली एनसीआर। ठीक है, फिर है हमारा तीसरा हमारे पास लैंड डिग्रेडेशन। सो दीज फॉरेस्ट लैंड कन्वर्टेड फॉर प्राइवेट यूज, दिस लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर इज आल्सो सीन इन देयर। तो अगर आपसे यूपीएससी सवाल पूछती है ह्यूमन एनवायरनमेंट से रिलेटेड एंड दिस कन्फ्लिक्ट बिटवीन अनस्टेबल डेवलपमेंट, देन यू कैन राइट दिस एग्जांपल आल्सो। ठीक है, अब ये एनवायरमेंटलिस्ट प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? सो दीज आर एनवायरमेंटलिस्ट वांट्स दैट इफ डिस्ट्रक्शन कंटिन्यूज, अगर यही चीज हम करते रहे, हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते बढ़ते अगर हम नेचुरल प्रोसेस को ही खत्म करते गए, द अरावलीज में लूज देयर एबिलिटी टू प्रोटेक्ट नॉर्थ इंडिया। ठीक है, अब उनकी डिमांड क्या क्या है? ठीक है, डिमांड की बात करते हैं। पहले उन्होंने बोला डिक्लेयर अरावली एज प्रोटेक्टेड इको सेंसिटिव जोन में आप इसको बदलो। ठीक है, तो इससे क्या क्या होगा, माइनिंग जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, कंट्रोल आ जाएगा कंस्ट्रक्शन पर, प्रोटेक्ट क्या करेगा फॉरेस्ट को लीगली। ठीक है, अगर यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछता है एनवायरमेंटल गवर्नेंस टूल्स का, सो दिस इज द एग्जांपल दैट यू कैन राइट हियर। दूसरी चीज, स्टॉप इलीगल माइनिंग और कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल रोक लगा दो उस चीज पे। उन्होंने डिमांड करा है कि इन्फोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल लॉ शुड बी देयर, एक्शन शुड बी देयर, मतलब पेनल्टीज होनी चाहिए अगर कोई वायलेट करता है ये चीजें। ठीक है, देयर शुड बी प्रॉपर अथॉरिटी, वी शुड कीप अ चेक ऑन दीज थिंग्स। अगर ये चीज चेक रखोगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताओगे, तो ही उसके बाद हमारा रैली जो है सेफ हो सकता है। ठीक है, दिस इज द अनदर थिंग दे हैव रिटन। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि वो और क्या क्या कह रहे हैं। तो इसी उन्होंने चीज बोली है कि एफोरेस्टेशन और हमारा लैंड रिस्टोरेशन होना चाहिए। सो एनवायरमेंटलिस्ट चाहते हैं कि प्लानिंग नेटिव ट्री शुड बी देयर। ठीक है, रिस्टोर करो डिग्रेडेड लैंड को, उसके बाद रिवाइव करो हमारे नेचुरल वाटर सिस्टम को। अगर यूपीएससी आपसे सवाल पूछता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट रेजिलियंस का, तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं। नाउ व्हाई डज दिस इशू मैटर फॉर पॉलिसी एंड गवर्नेंस, क्यों मैटर करता है ये? तो ये मैटर करता है बिकॉज द अरावलीज इश्यूज शोज कन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। ठीक है, दिस हमेशा मैंने देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा पीवाईक्यूज में, एथिक्स में, केस स्टडी में एक क्वेश्चन हमेशा हमेशा आपको एनवायरमेंट डेवलपमेंट का और हमेशा एनवायरमेंट का मिलता है। सो फ्रॉम हेयर यू कैन पिक आउट द डायलेमास, फ्रॉम हेयर यू कैन पिक आउट द कीवर्ड्स एंड यू कैन राइट दिस एग्जांपल आल्सो। एंड आई एम वेरी श्योर इस बार एथिक्स के पेपर में केस स्टडी में ये आएगा ही आएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट डाउन ऑल द कीवर्ड्स दैट आई एम डिक्टेटिंग यू। ठीक है, अब this basically needs very long term ecological planning. ठीक है, importance of court orders and government action should be there. अगर नहीं होंगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा एनवायरमेंट पे। सो इट ऑफन इन्वॉल्व्स स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट्स, ठीक है, एनवायरमेंटल एजेंसीज इंक्लूड करी जाती है, सिटीजन और एक्टिविस्ट होते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी अगर आपसे क्वेश्चन पूछती है अकॉर्डिंग टू गवर्नेंस और एनवायरमेंट का, सो दिस इज द एग्जांपल दैट यू कैन राइट है। ठीक है, अब कहानी तो हमें समझ में आ गई कि किस बारे में क्या क्या है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हम ये न्यूज पढ़ क्यों रहे हैं। तो वी आर रीडिंग दिस न्यूज बिकॉज दिस इज कवरिंग जीएस3, एनवायरमेंट के बारे में बात हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बात हो रही है। लॉन्ग टर्म पे अगर इतना ही ज्यादा नुकसान होता रहा टू अराइवलीज, तो वी कैन सी दिस लैंड डिग्रेडेशन है, राइट। क्लाइमेट रेजिलियंस के बारे में आई गिव यू द एग्जांपल आल्सो हाउ यू हैव टू यूज इट। देन जीएस2 एनवायरमेंटल गवर्नेंस, क्या रोल प्ले करती है गवर्नमेंट, स्टेट, एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, वो सारे रोल्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। ऐसे और एनवायरमेंट के लिए एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, ठीक है, द डिलेमा दैट इट इज लाइक फेस्ड। अब लॉन्ग टर्म के लिए तो नुकसान होगा ही, तो वही चीज हमें बैलेंस करके देख के चलनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट दीज एनवायरमेंटलिस्ट, दिस इज व्हाट एवरीवन इज सेइंग। ठीक है, आई होप यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी कि क्या प्रॉब्लम है। इज देयर एनीथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड इन दिस न्यूज एंड यू वांट मी टू रिपीट इट? तो क्या बात हुई है यहाँ पे? पहले तो ये जान लो कि अरावली हिल्स क्या है। ठीक है, ओल्डर देन हिमालयज है, इसकी वजह से यहाँ पे लॉ और ब्रोकन इरोडेड हिल्स में देखने को मिलती है। इसका यहाँ पे एरिया मैंने आपको मेंशन कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि एक्सपेंड करते हैं फ्रॉम द थार डेजर्ट। ठीक है, ये स्टॉप करते हैं, अगर नहीं होगा हमारे पास अरावली हिल्स तो थार डेजर्ट जो है एक्सपेंड कर जाएगा टुवर्ड्स दिल्ली एंड हरियाणा। ठीक है, कंट्रोल विल्सन सॉइल इरोजन, ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कैसे अगर हम प्लांट करेंगे ट्री तो सॉइल इरोजन कैसे रुकता है हमारे पास में।
groundwater recharge, rainwater strips underground, then biodiversity, dry regions and plant animals. So these are the useful things that you have to write down while writing the answers of the rivalries. ठीक है, लिंक मैंने आपको बता दिया GS1 और GS3 में यहाँ पे. Now moving to the next news, very important और अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो make sure that you are reading it in that way. Now what the news is? News is Bangladesh on edge. Who was Sharif Osman Hadi and whose death sparked protest? Bangladesh violence. पूरी कहानी पढ़ेंगे शुरू से लेके आखिरी तक, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, रीजंस क्या थे, इम्पैक्ट क्या होगा, इंडिया पे इम्पैक्ट क्या है, इंडिया क्या कर रही है, एंड हाउ सिटीजन्स आर रिस्पॉन्डिंग टू इट. आप और हम क्या कर रहे हैं इस चीज में, एक एक चीज पढ़ेंगे. ओके okay. ठीक है, अब कहानी सुन लेते हैं कि इसकी बांग्लादेश की कहानी है क्या एग्जैक्टली. क्या आप क्वेश्चन पूछा है? दिपासी जैना ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज अराइवली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट. तो बेसिकली ये अराइवली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है लाइक इनिशिएटेड बाय एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिस्टोर एंड प्रोटेक्ट द अराइवलीज माउंटेन्स रेंजेस इकोलॉजी. ठीक है, तो बेसिकली कॉन्टिन्यूअस क्रिएट बेल्ट करने के लिए ये चीज बनाई गई है. इट इज लाइक अ लिविंग वॉल अलोंग इट्स लेंथ. ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट था ये इंस्पायर किया गया था ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव इन अफ्रीका, जो बेसिकली एम करता है कॉम्बैट लैंड डिग्रेडेशन के लिए. ठीक है, अभी हो कहाँ पे रहा है, ये बेसिकली हो रहा है गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में. ठीक है, जितने भी अराइवलीज के लैंड्स के अक्रॉस द फोर द स्टेट्स है, इन सारी स्टेट्स में ये हो रहा है, क्योंकि जो हमारा अराइवली रेंज है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम गुजरात इन द साउथ वेस्ट अप टू द दिल्ली इन द नॉर्थ. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई है चीज. I'm sorry, there was some glitch from my side. I hope the screen is visible now. I hope the screen is visible. I hope मैंने आपका आंसर दे दिया है. Is there any question that you want me to say? ओके, तो मेन पर्पस ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो अराइवली हिल्स है वो वापस से ग्रीन में आए. ठीक है, क्योंकि काफी टाइम से क्या हो रहे थे, ट्रीज बहुत ज्यादा कट हो रहे थे, हिल्स की जो वहाँ पे दे वर लाइक माइंड, लैंड बिकेम ड्राई एंड एम्प्टी, राइट. सो द गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट टू प्लांट ट्रीज, लैंड को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर को. तो अराइवली हिल्स एक्ट लाइक अ नेचुरल वॉल फॉर नॉर्थ इंडिया. ठीक है, सो दिस प्रोजेक्ट वांट्स टू लाइक मेक्स दैट वॉल स्ट्रॉन्ग अगेन. सो दिस इज व्हाट दिस प्रोजेक्ट इज. दिस इज द रीजन एंड कंसेप्ट बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट. इज द आंसर क्लियर? Dipashi. Is the screen visible now? Okay. Now, अब आ जाते हैं अपनी न्यूज पर. ध्यान से सुनना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. सो इमेजिन अ कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश. ठीक है, इट्स लाइक अ स्टोरी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. तो मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग क्रोनोलॉजिकली कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और अभी क्या चल रहा है. तो इमेजिन करो कि बांग्लादेश, अ कंट्री वेयर यंग पीपल रिसेंटली बिलीव्ड कि फाइनली हमारा फ्यूचर जो है चेंज हो सकता है. तो 2024 में क्या हुआ कि बांग्लादेश वेंट थ्रू अ ह्यूज पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट. ठीक है, काफी टाइम से स्टूडेंट्स एंड यंग पीपल लाइक केम आउट ऑन द स्ट्रीट, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे. थक चुके थे करप्शन से, अनएम्प्लॉयमेंट से, लीडर्स हु स्टेड इन पावर फॉर टू लॉन्ग. सो दिस प्रोटेस्ट स्लोली ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. फाइनली जो प्रेशर था वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि दिस लॉन्ग सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैड टू स्टेप डाउन. अब पीपल फेल्ट समथिंग ड्यूरिंग दिस टास्क. क्या मिला उन्हें? होप नजर आई उन्हें, एक उम्मीद नजर आई. सो मेनी फेसेस इन द क्राउड, वन यंग मैन स्टूड आउट. एक आदमी था जो खड़ा हुआ, एंड द यंग मैन नेम वाज शरीफ ओस्मान हदी. यहीं से कहानी सारी शुरू होती है हमारी. शरीफ ओस्मान हदी. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड,
that basically he came out. He was like a brilliant and he was seen as an inspiration by youth. दिबाश्री, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको वही चीज बताई है, दैट्स व्हाट आई एक्सप्लेन्ड यू बेटा। डीसर्टिफिकेशन क्या होता है? डीसर्टिफिकेशन का मतलब होता है दिस फर्टाइल लैंड स्लोली टर्निंग इनटू डेजर्ट। ठीक है, क्यों हो रहा है वो? क्योंकि हम लोग ट्री कट कर रहे हैं, वाटर का लैक हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, माइनिंग हो रहा है। आपने बहुत लेट ज्वाइन करा है, मैं आपको ऑलरेडी वो चीज एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अराइवलीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डीसर्टिफिकेशन के कंटेक्स्ट में जरूरी क्यों है वो हम वो भी चीज कर चुके हैं। ठीक है, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा ये ग्रीन प्रोजेक्ट है क्या। अब ये डीसर्टिफिकेशन बेसिकली स्टॉप कैसे करेगा? ये करेगा एज ट्रीज होल्ड द सोइल। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग ऑफ द न्यूज में बताया है, बिकॉज इट विल लाइक होल्ड द सोइल, राइट, बिकॉज सोइल डज नॉट फ्लाई विद द विंड। दूसरी क्या चीज करेगा? रूट्स कीप वाटर इन द ग्राउंड, राइट, लैंड डज नॉट ड्राई क्विकली। तीसरी चीज क्या करेगा? ग्रेट, बेसिकली इट इज गोइंग टू ग्रीन कवर रिड्यूसेस हीट, राइट। तो ज्यादा कम ड्राई, हमारी कम ड्राइनेस होगी तो मतलब बेटर क्लाइमेट होगा, हिल रीजन्स हमारी जो है वो स्ट्रेंथ होगी, डेजर्ट कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, राइट। तो हमारा जो है लैंड जो है हमारा ग्रीन रहेगा। सो डिसर्टिफिकेशन इस वजह से कम हो जाएगा। अब आपको समझ में आया? ये मैं चीज आपको बहुत स्टार्टिंग में ही समझा चुकी हूँ, आपने आई थिंक बहुत लेट ज्वाइन करा है। ओके, आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। As we were talking about Sharif Osman Hadi, so he was like 30 years old and he spoke confidently, clearly and fearlessly. So students used to listen to him. Okay? Young people trusted him, and after the protest, he became the spokesperson of what? Inqilab Mancha. ये political group है जो basically it born out of the student movement. For many people, Hadi symbolized a new Bangladesh, जो कि youth से चलाया जा रहा था, honesty से चलाया जा रहा था, courage से चलाया जा रहा था, right? So by 2025, he decided to take a bigger step. He planned to contest the February 2026 parliamentary election, standing as candidates from Dhaka. People believed if someone like him enters parliament, and then real change may come soon. तो लोगों के अंदर उम्मीद जागी कि अगर ये इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश का जो बेसिकली जो सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, now what happened that there is like one dark day that came. So on 12 December 2025, while Hadi was campaigning in Dhaka, talking to people, meeting supporters, two masked men in motorcycles suddenly appeared. In broad daylight, they shot him. People screamed, panicked, and they basically this news were like spreading. So Hadi jo tha, basically he collapsed on the ground and he was like rushed to hospital in Dhaka. So doctors they tried their best, and because his injuries were so serious, उसकी वजह से क्या हुआ? He was flown to Singapore for the advanced treatment. कुछ टाइम के बाद लोगों ने वेट करा, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऑन 18 दिसंबर 2025 ये न्यूज आती है दैट ही पास्ड अवे, दैट शरीफ ओस्मान हदी हैड डाइड। So his death, it felt like a knife in the heart for the nation. बहुत सारे लोग, हदी वाज लाइक नॉट जस्ट अ पॉलिटिशियन, ठीक है, वो एक आवाज बन चुके थे स्टूडेंट्स के लिए, एक होप बन चुके थे यूथ के लिए, एक सिंबल बन चुके थे 2024 का जो अपराइजिंग एंगर देखने को मिल रहा था, जो डर जो इतना ज्यादा जल्दी बढ़ रहा था बांग्लादेश में, उन सब चीजों के लिए एक उम्मीद बन चुके थे, राइट। तो हदी की डेथ के बाद, ओके थैंक यू। नाउ हदी की डेथ के बाद क्या हुआ? दिस एंगर स्प्रेड वेरी क्विकली अक्रॉस बांग्लादेश। बहुत सारे लोग जो थे दे वर लाइक दे फेल्ट दिस इज नॉट डेथ, ठीक है, बट इट वाज लाइक वन पर्सन डेथ, बट इट इज लाइक अ साइन कि जस्टिस जो हमारा वीक हो रहा है, पॉलिटिक्स जो है हमारा और ज्यादा अनसेफ हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग लार्ज क्राउड केम आउट इन द स्ट्रीट इन ढाका एंड अदर सिटीज। तो पहले पीपल वर ओनली प्रोटेस्टिंग, ठीक है, एंड आस्किंग वन सिंपल क्वेश्चन कि उसको मारा किसने और क्यों, ठीक है, सिर्फ एक ही सवाल के लिए उम्मीद में सब लोग बाहर निकल कर आए। सो दिस डेली लाइफ स्टॉप्ड, रोड्स वर ब्लॉक्ड, शॉप्स क्लोज्ड एंड पीपल वर स्केयर्ड टू गो आउट, ठीक है, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया आफ्टर हिज डेथ। धीरे धीरे क्या हुआ दैट दिस सम प्रोटेस्टर्स टर्न्ड आउट वायलेंट। क्या हुआ कि अ फ्यू एंग्री ग्रुप्स अटैक द ऑफिसेज ऑफ फेमस न्यूज़पेपर्स, जैसे कि हमारा प्रथम एलो हो गया और डेली स्टार हो गया। अब वहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चैनल्स थे जो बेसिकली क्वेश्चंस करते थे गवर्नमेंट से, राइट। सो दिस प्रोटेस्टर्स फेल्ट दैट मीडिया वाज नॉट स्पीकिंग स्ट्रांगली इनफ फॉर देम। So during the attack, journalists were like stuck inside the buildings. Police had to hit them out, basically came out safely, and this scared many reporters and raised questions कि फ्री मीडिया कहाँ है जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है, हमारा फ्री मीडिया डेंजर में है।
लोगों के अंदर एक नया डर पैदा हो गया. So this anger that did not stop there. Protesters basically attacked these cultural places like Chayanoor. अब ये भी बहुत ज़्यादा important है क्योंकि because this is basically known for music, culture identity के लिए जाना जाता है, politics का इससे कोई लेना देना नहीं है. तो जो लोग थे वो और ज़्यादा shocked हो गए. उन्हें उन्हें कहीं ना कहीं ये डर दिखा, उन्हें कहीं ना कहीं ये डर दिखा कि जो वायलेंस था अब वो लॉजिकल नहीं रह गया. ठीक है, अब जो प्रोटेस्ट थी वो लॉजिकल नहीं रह गई है. ठीक है, अब वो जो है बेसिकली वो प्योर एंगर में बदल रहा है क्योंकि हमारा जो आर्ट, हमारा जो कल्चर है, जो पीसफुल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो भी अटैक पर आ रहा है. सो मेनी पीपल वर ऑलरेडी अनहैप्पी विद द इंटरिम गवर्नमेंट, so they felt it could not control violence, protect people, or give fast justice. Right? So with this, Hadi's death became the final push. So the protests were not only about him, but also about fear, also about anger and loss of trust in the government. So the most painful part was that when innocent people suffered in Lakshmipur, ये दूसरी कहानी हमारे पास आती है लक्ष्मीपुर की. A violent mob set fire to the house of a local leader from Bangladesh National Party, BNB. Inside the house was his family और एक 7 साल की छोटी बच्ची की वहां पर डेथ हो जाती है in the fire. और जो बाकी थे they were like injured badly. So this incident shocked everyone. ठीक है, because that kid had nothing to do with these protests, these politics, right? And then still she is killed. So this showed a very sad truth. जब भी political violence जो हमारा बढ़ता है, हमेशा common family suffer करती है, children suffer करते हैं, right? जो situation थी वो इतनी ज्यादा serious हो गई और ये question उठाती है हमारी laws and order पर, पुलिस failure पर, और हमारा सवाल उठाती है कि authority है किसकी, and on the duty of state to protect innocent lives. ठीक है, ये सिचुएशन हमेशा ये सवाल उठाते हैं. सो इट ऑल्सो टॉट एन इम्पोर्टेंट लेसन फॉर स्टूडेंट्स कि जब भी हमारा एंगर रिप्लेस करता है लॉ से, ठीक है, ह्यूमैनिटी जो है सबसे पहले सफर करती है जब भी वायलेंस का नाम आता है. अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक आपको आप समझ में आ चुका होगा कि क्या क्या लक्ष्मीपुर में हुआ और उससे पहले आपके पास हदी के साथ क्या इंसिडेंट हुए. अब इन द टाउन ऑफ मायमन सिंह अ वेरी डिस्टर्बिंग इंसिडेंट हैपेंड. नाउ व्हाट हैपेंड देयर, a young Hindu man named Deepu Chandra Das was suddenly surrounded by a mob. So the mob accused him of hurting religious feelings, something often described as, blasphemy. Right? So without waiting for the police और किसी भी legal process के, लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उसे मारना शुरू कर दिया. Right? He later died because of these injuries, and this shows कि कितना ज़्यादा dangerous हो सकता है किसी भी mob का anger, right? किसी भी जगह पर. So what made the incident even more shocking was that what happened after his death. The mob hung his body and set it on fire. So this act deeply scared minority communities. सवाल उठाने शुरू कर दिए कि minority communities के साथ इतना बुरा हाल हो सकता है बांग्लादेश में. And basically it spread fear across the country. It also increased communal tension because the victim belonged to a religious minority, right? So such violence shows कि rumors, religious emotions, crowd mentality, ठीक है, वो ज़्यादा powerful हो रहे हैं than laws and justice. And this is not the case of Bangladesh. ठीक है, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा extreme cases हो रहे हैं, पर और countries में भी ये violence देखने को मिल रहे हैं. This is like the birth taking place of such kind of violences. ठीक है, इतने ज़्यादा चीजें हो रही हैं हमारे पास अभी. Okay. अब क्या हुआ? After public pressure and anger, right, the police took action. So first 10 people were arrested and 2 more were arrested, making a total of 12 arrests in this lynching case. So this showed that the authorities were trying to respond, but this incident still raises very serious questions. ठीक है, कि वो बेसिकली इतना फ्रीली, वो लोग इतना फ्रीली कैसे एक्ट कर रहे थे और वहां पर प्रिवेंट करने के लिए उस क्राइम को पुलिस टाइम पर पहुंची क्यों नहीं. So this lynching did not remain a local issue. It shocked people in India as well, especially because it involves a violence against a Hindu minority member. So many people felt worried about the safety of minorities in Bangladesh, and this concern crossed borders also. तो इसकी वजह से न्यू दिल्ली, a small group of around 20 to 25 people, ये अब तीसरी चीज हमारे पास आती है, 20 to 25 people gathered outside the Bangladesh of High Commission. तो उन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, स्लोगन्स उन्होंने रेज करने शुरू कर दिए, डिमांड करना शुरू कर दिया कि दीपू चंद्र दास को डिमांड मिलना चाहिए और माइनॉरिटीज को बांग्लादेश में प्रोटेक्शन दी जाए. सो द प्रोटेस्ट वाज शॉर्ट और बहुत लिमिटेड थी, बट इट गेन्ड अटेंशन बिकॉज इट इन्वॉल्व्ड अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन. Soon after, some Bangladesh media reports claimed that the protesters threatened diplomats and tried to enter the High Commission. So this reports creates confusion and diplomatic tension.
इंडियाज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दैट इज MEA, राइट, उन्होंने इस चीज को स्ट्रांगली रिजेक्ट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट जो थी वो हमारी बहुत पीसफुल थी एंड देयर वाज नो डैमेज, नो थ्रेट, और ना ही कोई स्क्रूटनी ब्रीच हमें देखने को मिला है, ना हुआ है, right? So India's police, like, it dispersed the protester within minutes and the situation remained under control. This is what MEA has said. Now, MEA also reminded everyone that India follows international rules, especially जब भी Vienna Convention और diplomatic relations की बात आती है तो ये basically it makes it of the duty of host of the country to protect foreign embassies and diplomats, right? So India said it continues to monitor the situation closely and stays in communication with Bangladesh authorities also. ठीक है? So this is another news that came up with, अलग situation ये देखने को मिली है हमें। अब ये तो हमें पता चल गया कि इंडिया में क्या-क्या चल रहा है। अब बात करते हैं meanwhile inside Bangladesh what is happening. So these political reaction added another layer to the crisis. The country's chief advisor Muhammad Yunus arranged a state funeral for Sharif Osman Hadi with heavy security. So during the funeral, what happened? He promised to respect Hadi's ideas and continue his mission, showing how important Hadi had been in national politics. Right. At the same time, the same leader who are living outside Bangladesh and are linked to the former ruling party gave a different explanation. उन्होंने क्लेम किया दिस एक्सटर्नल एंटी इंडिया फोर्सेस वर लाइक बेसिकली encouraging violence and unrest to disturb election and create instability. So these claims added in international angles to the crisis also. तो इसकी वजह से बांग्लादेश सिचुएशन becomes more unstable. So basically there were like street violences also, minority fear भी देखने को मिला, diplomatic tension भी हमें देखने को मिली है इंडिया के साथ में, political blame games भी हमें देखने को मिली है, जैसे कि बांग्लादेश ने भी blame किया है, right, which is happening at the same time, साथ साथ में सारी चीजें हो रही हैं. So for student, this entire episode clearly shows one thing, that one death can trigger protests and how protests can turn into violent and how internal problems can quickly affect international relations also. ठीक है, तो ये सारी ही चीज आपको इस न्यूज के थ्रू समझने की जरूरत है. ओके, आई होप आपको स्टोरी समझ में आ चुकी होगी. इज देयर एनी पार्ट दैट यू वांट मी टू रिपीट एंड यू डिडंट अंडरस्टैंड? कुछ भी बोलना है, बताना है, डिस्कस करना है तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो. अब ये हम न्यूज पढ़ क्यों रहे हैं? वी आर रीडिंग दिस न्यूज बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर GS1, राइट, एज इट टेल्स अबाउट कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट, हमारी जो मूवमेंट्स है वो कैसे कैसे चेंज हो सकती है, राइट. सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर GS2 ऑल्सो. इंटरनेशनल रिलेशंस और नेबरहुड पॉलिसी में बताते हैं कि बांग्लादेश इज इंडियाज नेबर, ठीक है. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है अफेक्ट करती है हमारी रीजनल सिक्योरिटी में भी, ठीक है. दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है GS पेपर 1 के लिए. GS पेपर 1 की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री और सोसाइटी के बारे में पता चलता है दैट स्टूडेंट मूवमेंट एंड पॉलिटिकल चेंज इन साउथ एशिया इज हैपनिंग हियर. कंटेम्परेरी और वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में पता चलता है कि पॉलिटिकल शिफ्ट और बेसिकली सिविल अनरेस्ट इन बांग्लादेश, हाउ इट इज हैपनिंग, व्हाट इट इज हैपनिंग, राइट. GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज बेसिकली टेलिंग अस इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस आल्सो, कम्युनल वायलेंस कैसे होते हैं, सोशल हार्मनी पे थ्रेट कैसे होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और वायलेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है. तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली है. अब जब हदी की डेथ हुई तो उस पे गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्स करा? सो दिस इंटरिम गवर्नमेंट दैट इज लेड बाय चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, ठीक है, ही रिएक्टेड. उन्होंने डिक्लेयर कर दिया नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग, ठीक है. उन्होंने बोला लोगों को कि आप लोग काम रहो, ठीक है, रेस्ट्रेन रहो, और प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग द दिस प्रोपरेटर्स टू जस्टिस, आपको बेसिकली जस्टिस मिलेगा. तो अनाउंस कर दिया स्पेशल प्रेयर इन द मॉस्क फॉर दी हदी. नाउ सिक्योरिटीज की वजह से इंक्रीज कर दी गई, ठीक है, पूरे शहर में, पूरे एरिया में. सो दिस स्पेशली अराउंड द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स एंड ड्यूरिंग द स्टेट फ्यूनरल आल्सो. अब ये मैटर करता है हमारे लिए, हम इसके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमें दिखाता है कि गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करती है इन क्राइसिस पे, बैलेंस कैसे लेकर चलती है पब्लिक ऑर्डर्स पे और पॉलिटिकल प्रेशर के थ्रू एंड सिक्योरिटी आल्सो, ठीक है. अब ये जो बेसिकली चीज है हमें बताती क्या है, ये हमें पूरा एपिसोड हमें ये बताती है और पॉलिटिकल वायलेंस और डेमोक्रेसी के बारे में. He a prominent activist that is killed during election campaigning shows risk to democracy also. Freedom of expression, political participation कैसे होता है. दूसरी चीज यूथ मूवमेंट और चेंज की बात करें तो हदी rises from student activist to electoral this politics, right, and illustrates the power of youth in political transformation also. ठीक है, ये सारी कहानी में देखने को मिली है. फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं सिविल अनरेस्ट की तो हमें पता चलता है कि लॉज एंड ऑर्डर्स कैसे मेंटेन होते हैं, ठीक है. So the violent protest reveals challenges in national stability और हमारा law enforcement also, ठीक है. हमें यहाँ पे एक चीज और पता चलती है which is very important especially when it comes to ethics also, media freedom और civil rights. Attacks on newspaper offices, this highlights the attack on free or speech passes also, ठीक है. I hope ये न्यूज क्लियर है.
किसी को कोई सवाल, कुछ क्वेश्चन? आगे मूव करें अगली न्यूज की तरफ। Okay, moving to the next news, it says over half of electoral deletions in TN concentrated in 8 districts in 2 clusters. Another important news. Okay, imagine करो a classroom where every student must, must be in the attendance list. ठीक है, बोला गया है attendance list में सबका नाम होना चाहिए. And teachers check the list regularly. ये श्योर करने के लिए कि सबके नाम अप टू डेट है या नहीं. If a student moves away or basically graduated, ठीक है, तो उनका नाम जो है हटा देना चाहिए. हमने सबने स्कूल में देखी ये चीज. So the list is correct. So but if many names are like removed wrongly, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी लिस्ट है वो इनएक्यूरेट हो जाएगी और अनफेयर हो जाएगी, है ना. तो अब पिक्चर करो कि यही चीज जो हमारी है रियल इलेक्शन सिस्टम में भी हो रही है, एक्सेप्ट ये कि अटेंडेंस लिस्ट की जगह हमारे पास है इलेक्टोरल रोल्स. ठीक है, सो दिस लिस्ट ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट, राइट. तो तमिलनाडु में कुछ ऐसा सीन हो रहा है कि इलेक्शन ऑफिशियल्स रिसेंटली रिव्यूड द वोटर लिस्ट एंड डिलीटेड, दैट इज रिमूव अ लार्ज नंबर ऑफ नेम्स. तो इसका मतलब ये है दोज पीपल हु वुड लाइक नो लॉन्गर बी एलिजिबल टू वोट अनलेस देयर नेम्स आर रिस्टोर्ड. तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है न्यूज का कि मोर देन हाफ ऑफ द टोटल डिलीशन इन तमिलनाडु आर कंसिडरेटेड इन जस्ट 8 डिस्ट्रिक्ट. मतलब सिर्फ इन 8 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा रिमूवल हो रहा है, सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, दैट इज लाइक ग्रेजुएटेड इन लाइक मोर देन लाइक 2 क्लस्टर्स, राइट. तो इसका मतलब ये है कि कुछ ही एरियाज है जहां पे ये ज्यादा डिलीशन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बेसिकली रेज करता है ये कंसर्न, क्वेश्चन करता है ये कि क्यों इन्हीं पर्टिकुलर एरियाज में हमारे पास ये टारगेट, ये रिमूवल ऑफ द टारगेट देखने को मिल रहा है. ठीक है, so these deletions are usually done for reasons like people might have like moved away permanently. ठीक है, या फिर उनका नाम जो है वो डुप्लीकेट नाम है. ठीक है, जैसे कि सेम पर्सन बेसिकली लिस्टेड मल्टीपल टाइम्स, या फिर people may have died but they are on the same list. ठीक है, और there may be more errors in the list. ठीक है, ये reasons हमारे पास हो सकते हैं. लेकिन इतना ज्यादा डिलीशन देखने को मिल रहा है एंड इट्स लाइक वर क्लस्टर्ड इन द सर्टेन एरिया. सो सम सिटीजंस, पॉलिटिकल लीडर्स एंड एनालिस्ट, दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस कि ये बेसिकली प्रोसेस फेयर है, ट्रांसपेरेंट है या एक्यूरेट है या नहीं. ठीक है, सो इफ एलिजिबल वोटर्स आर रिमूव्ड रॉन्गली इट अफेक्ट्स द राइट टू वोट, राइट. तो वो चीज मेंटेन करके चाहिए. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो उनका क्वेश्चन सही बनता है. सो विच इज अ कोर डेमोक्रेटिक राइट आल्सो इन इंडिया. सो इसीलिए दिस न्यूज हैज अट्रैक्टेड अटेंशन क्योंकि इट टचेज ऑन वोटर इंक्लूजन, एक्यूरेसी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड फेयरनेस इन डेमोक्रेसी. ठीक है, आसान शब्दों में कहा जाए तो तमिलनाडु हैज रिमूव्ड अ लॉट ऑफ वोटर्स नेम फ्रॉम इट्स इलेक्टोरल रोल्स, बट मोर देन हाफ ऑफ दीज डिलीशंस आर हैपनिंग इन जस्ट 8 डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो ये कंसंट्रेट करता है 2 रीजनल क्लस्टर्स में और ये क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं अबाउट फेयरनेस और एक्यूरेसी इन द वोटर लिस्ट. आई होप बेसिक कहानी सबको क्लियर है, डिटेल में सब कुछ समझेंगे, बट इज द बेसिक स्टोरी क्लियर टू यू? उससे पहले समझ लेते हैं कि हम ये न्यूज पढ़ क्यों रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तो फिर किस किस सब्जेक्ट में इसको लिंक कर सकते हैं. JS2 में यू कैन लिंक इट, राइट, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट इलेक्टोरल प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स. राइट टू वोट के बारे में यहाँ पे बात करी जाती है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यहाँ पे बात करी जा रही है रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या है इलेक्टोरल रोल्स में, इश्यू क्या क्या हमारे पास रेज हो सकते हैं जब ये वोटर लिस्ट एक्यूरेसी की बात आती है. ठीक है, GS2 में हमारे पास समझ में आ गया. GS1 में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट टॉक्स अबाउट एथिक्स एंड गवर्नेंस ऑल्सो. ठीक है, इंक्लूसिव प्रोसेस के बारे में बात हो रही है, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ सिटीजन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. ठीक है, समझ में आया हम ये न्यूज पढ़ क्यों रहे हैं. अब सबसे पहली बात ये हो क्या रहा है तमिलनाडु में, तो अभी पता चला है दीज रूटीन चेक्स ऑफ वोटर लिस्ट इज हैपनिंग. ठीक है, एंड दे फाउंड आउट दैट लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स नेम्स वर डिलीटेड, राइट, फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स इन तमिलनाडु. तो इमीडिएटली इन्होंने बेसिकली अटेंशन ग्रैब करी क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ डिलीशंस हैपेंड इन जस्ट 8 डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, सो दीस 8 डिस्ट्रिक्ट वर नॉट रैंडम, दे वर ग्रुप्ड इनटू 2 नियर बाय क्लस्टर्स. तो इसका मतलब ये है डिलीशंस जो थे वो बेसिकली इवनली स्प्रेड नहीं अक्रॉस द स्टेट. अगर इवनली स्प्रेड होते तो शायद क्वेश्चन रेज नहीं होता. ठीक है, अब क्योंकि ये सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, ये चीज मास में हो रही है, तो इसी की वजह से ये कंसर्न पैदा करता है. ठीक है, अब ये क्लस्टर हमारे पास मैटर करता है. क्लस्टर इसलिए मैटर करता है, if water deletions were happening everywhere in small numbers it would look normal.
but here many deletions happening in the same nearby district. So this pattern made people ask कि why are so many names being removed from the same areas. तो ये geographical concentration बहुत ज़्यादा important है हमारे यूपीएससी के लिए, क्योंकि हमें दिखाता है कि डेटा पैटर्न्स होते कैसे हैं और बेसिकली रिवील करते हैं हमारी डीपल एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल इश्यूज को. अब इलेक्शन प्रोसेस जो हमारा बहुत ज्यादा और ज्यादा केयरफुली और मॉनिटर होता है, एज ऑफिशियल्स आर आल्सो आस्किंग द क्वेश्चंस, राइट? नाउ इट रेजेस अनदर क्वेश्चंस आल्सो. अब ये क्वेश्चन करता है कि व्हाई वोटर्स नेम आर डिलीटेड एट ऑल. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिलीशंस वोटर नेम इज नॉट ऑटोमेटिकली रॉन्ग. अंडर लॉ वोटर लिस्ट आर लाइक रेगुलरली अपडेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया. नेम्स जो डिलीट होते हैं दे आर लाइक वैलिड रीजंस, ठीक है. या तो वोटर जो होता है दैट बेसिकली ही हैज डाइड, वोटर हैज लाइक शिफ्टेड टू अनदर प्लेस, डुप्लीकेट नेम जो है यूज करता है, या फिर एंटायरली जो है मतलब चीजें उसमें देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर लाइक रॉन्ग इन दैट, ठीक है. तो अभी जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड इलेक्टोरल रोल रिविजन्स. क्या बोलते हैं इसको? ठीक है. अब ये सारे के सारे हमारे पास कंसर्न तो आ गए, लेकिन ये कंसर्न है क्यों? ठीक है, व्हाई इज देयर सो मच ऑफ कंसर्न? कंसर्न इसलिए है, इट इज नॉट अबाउट डिलीशन इटसेल्फ. कंसर्न इसलिए है रॉन्ग डिलीशन ना हो जाए, ठीक है. राइट टू वोट है, सबका अधिकार है वोट करने का, तो ये मैटर उस तरफ शिफ्ट ना हो, इसलिए पीपल आर रेजिंग क्वेश्चन. So people worry, what if eligible voters were removed by mistake? What if poor migrant, ठीक है, elderly और less aware voters lost their names? उनका तो हक चला जाएगा ना, ठीक है. तो क्या उन लोगों को चांस मिलेगा बेसिकली ये वेरीफाई करने का, ठीक है. So if eligible citizens have lost their name, those lost their right to vote, democracy becomes less inclusive, ठीक है. So this directly links to the UPSC concepts also, which basically ask the questions related to free and fair elections. ठीक है. अब इस प्रोसेस के पीछे there are many laws and rules behind this, as electoral roll updates are not done under statutory guidelines by election commission officials and state election machinery with procedures like public notice, verification, claim objectification period. तो बेसिकली ये जो सिस्टम है फेयर होना चाहिए, ठीक है. बट अगर प्रैक्टिस की बात करें, जो इतना ज्यादा डिलीशन देखने को मिल रहा है, लार्ज डिलीशन इज हैपनिंग देयर, तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन पर, ठीक है. अब ये ज्यादा रूल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात आती है, गवर्नेंस की बात आती है, एथिक्स की बात आती है, राइट. सो दिस इज द न्यूज अबाउट. आई होप न्यूज इज क्लियर टू यू. इज देयर एनी क्वेश्चन, anything that you want to discuss? You can write in the chat box. So with this we'll end today's current affair, and I'll see you at the same timing at 9:10 a.m. Thank you for joining. And make sure that you are not, make sure that you are not forgetting your task that I gave in the starting of video. Write down that which current affair you like the most, from which current affair you learned something, and why we are doing this I've explained in the starting of the video. So make sure that you are writing your comment sections. Thank you.